سفلی کے گندے علم کے ماہرین کے غلیظ ترین اور حیرت انگیز کارنامے، مستقبل میں جھانکنے والی ان قوتوں کا ذکر جو انسان کو انگشتیں بندھا کر دیتی ہے، کسی ایسے علاقے کی تہذیب کی حیرت انگیز اور ہولناک رسمیں جو بدن کے رونگٹے الف کر دیتی ہیں، جادو ٹونے جنتر منتر اور ٹوٹکے کے ناقابل یقین چمتکار، خدا کے کسی برگزیدہ بزرگ اور مجذوب کے کرشموں اور معجزوں کی تفصیل، ہولناک پر اسرار اور ناقابل یقین ماحول کے پس منظر میں لکھی جانے والی خوفناک کہانی رقص ابلیس۔ میں نے تھوڑی سی ترمیم کے بعد راجو کی تجویز مان لی اور پھر یہ سوچنے لگا کہ اللہ کا وہ نیک بندہ کون تھا جس نے بر وقت شیرہ کی جان بچانے کی خاطر مجھے سوتے میں اشارہ دیا تھا۔ شیرہ سے ہماری ملاقات ناشتے کے بعد ہی ممکن ہوئی اور راجو کے مشورے کے مطابق میں نے فرضی دھمکی کا ذکر کیا تو شیرہ نے مجھے غور سے دیکھا اور اس کے چہرے کی کیفیت سے دل کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا، اور راجو نے بھی میری بیان میں مرچ مسالہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ اور شیرہ نے مجھ سے دریافت کیا۔ میں تم سے مشورہ لینے کی خاطر ہی حاضر ہوا تھا، اور میں نے پہلو بدل کر کہا میں حالات سے خوفزدہ نہیں ہوں، لیکن کیا؟ اور شیرہ نے بدستور سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ تم نے مجھے جو سہارا دیا ہے اور میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، مگر میری وجہ سے تم کو اور تمہارے آدمیوں کو کوئی پریشانی لاحق ہو اور یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اور میں نے قدر سنجیدگی سے جواب دیا، چودھری نواز کے گرگے مجھے نازوں تک آسانی سے نہیں پہنچنے دیں گے، قدم قدم پر میرا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مجھے موت کے گھاٹ نہیں اتار دیں گے۔ شیرہ میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا رہا اور اس نے جیل خانے میں ہاتھ ملا کر مجھے اپنایا تھا اور مجھے جینے کے گر سکھائے تھے۔ خان دلاور کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنا ایک بازو قرار دیا تھا، اور شاید میری بات سے اسے دکھ پہنچ رہا تھا، لیکن وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اس لیے خاموشی سے میری دلیلیں سن رہا تھا۔ اور پھر اس نے کچھ توقف کے بعد راجو کو کسی کام سے باہر بھیج دیا۔ اب بول شہزادے، کیا کہہ رہا تھا تو؟ اور شیرہ نے طویل سانس لے کر مجھے مخاطب کیا۔ اور کون دھمکیاں دے رہا ہے تجھے؟ اس نے اپنا نام کچھ نہیں بتایا استاد، اور میں نے دبی زبان میں کہا بتایا ہوتا تو بھی تجھے یاد نہ ہوتا۔ اور شیرہ میں نے کھیت انداز میں مسکرا کر بولا کیا مطلب؟ اور میں نے شیرہ کو تعجب سے دیکھا اور اس کی مسکراہٹ کا مطلب میری سمجھ سے بالا تر تھا، اس لیے کہ اس کا کوئی نام نہیں اور کوئی صورتحال، کوئی مشکل نہیں، بس ایک آواز ہے، اور جو دارالاسلام کی اس کباب گاہ میں سنائی دیتی ہے جو میرے لیے مخصوص ہے۔ شیرہ نے وجد کی کیفیت میں جھومتے ہوئے کہا، اور پھر بڑی سنجیدگی سے بولا شیرہ اپنے جسم پر کئی آنکھیں اور بہت سارے کان رکھتا ہے، اور میرے چاہنے والوں کا شمار انگلیوں پر نہیں کیا جا سکتا۔ میں کچھ سمجھا نہیں استاد، اور میں نے معصوم بننے کی کوشش کی تو شیرہ مسکرا کر بولا دھمکی والے بہانے کا مشورہ تجھے راجو نے دیا ہوگا۔ اور وہ بڑی اپنائیت سے دوستوں کے انداز میں بولا بہت محبت کرنے لگا ہے تم سے، اور شاید اسی لیے چودھری نواز کے ساتھیوں کا شکار کھیل کر میدان تمہارے لیے صاف کرنا چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ بھول جاتا ہے کہ استاد بہرحال استاد ہی ہوتا ہے۔ میں نے شیرہ کی بات کا جواب نہ دیا، اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ جو بات ہم اس سے چھپانا چاہتے ہیں وہ جان چکا ہے، اور اس نے دارالاسلام کی خواب گاہ والی آواز کا حوالہ بھی دیا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ بھی کبھی اس پر اسرار آواز کو سن چکا ہے۔ مجھے بتاؤ شہزادے، اس نے دبی زبان میں پوچھا، اور تم یہاں کس مقصد سے آئے تھے؟ اور مولسری کے درخت کی جڑ کی کھدائی کا کیا راز تھا؟ اور مجھے پھریری آ گئی۔ میں نے بڑی صاف گوئی سے سب کو چھکل دیا، اور بات میری ذات کی ہے اس لیے میں ہونٹ سی لوں گا، لیکن تم اور راجو اپنی زبان بند رکھنا، اور یہ سب اوپر والے کے بید ہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔ شیرہ نے بڑی عقیدت سے کہا، اور اس سے پہلے بھی ایک دو بار اسی آواز نے میری زندگی بچائی تھی، اور ایک بار تو میں موت کے کنویں میں چھلانگ مار چکا تھا جب اس نے میری رہنمائی کی۔ وہ کس کی آواز ہو سکتی ہے؟ اور میں نے دبی زبان میں پوچھا۔ راجو نے تمہیں بتایا ہوگا کہ کبھی دارالاسلام کی جگہ ایک دینی مدرسہ ہوا کرتا تھا، جہاں میرا باپ بچوں کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اچھی باتیں بتایا کرتا تھا، اور اب بھی ہر ہفتہ وہاں اجتماع ہوتا ہے۔
जाने कौन कौन किस किस बेद में आता है। और शेरा ने झूमते हुए कहा, हो सकता है कि उन्हीं बरगजीदा बंदों में से किसी को मेरी कोई अदा पसंद आ गई हो। राजू के आ जाने के बाद शेरा ने मौजू बदल दिया और कुछ देर खामोशी के बाद बोला, नहीं शहजादे, और तुम शेरा के ग्रोह में अपनी मर्जी से दाखिल हुए थे, लेकिन अब तुम्हारी वापसी शेरा की मर्जी के बगैर नहीं। और जो लोग तुम्हें धमकियां दे रहे हैं वो खुलकर सामने आने की जुर्रत नहीं करेंगे। लेकिन उस्ताद, राजू बोला, और वह पुरुष से छुप कर भी वार कर सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूं कि कौन कितने पानी में है। और शेरा ने फैसला कुन लहजे में कहा, छोटे मोटे कीड़ों को ख़त्म करने की खातर स्प्रे से भी काम चल जाता है। और तुम जाकर ऐश करो, जो कुछ हुआ है उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। और हाँ, शेरा ने अपने आखिरी जुमले पर जोर देकर संजीदगी से कहा, अपनी जुबान बांधी रखना और किसी को इन बातों की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। 75 लाख की रकम कादम पाशा के वर्षा को पहुंचाने के बाद मैं राजू के साथ गाड़ी में बैठा तो मेरी आंखें नमनमाक हो गईं। कादम पाशा के वालिद ने रुपए लेते वक्त खामोशी से नजरें उठाकर आसमान की तरफ देखा तो जैसे मेरे कलेजे में किसी नेज़े की अन्नी उतर गई हो। और उसकी आंखों में न जाने कितनी हसरतें तड़प उठी थीं, कितने दर्द बेदार हो गए और कितनी तमन्नाएं मचल कर दम तोड़ गईं। माजी की यादों ने यकीनन उसके दिल पर औलाद की जुदाई की बर्छियां चलाई होंगी और वह दिल महसूस कर रह गया होगा। हालात ने मजबूरन उसे वो रकम कबूल कर लेने पर आमादा किया होगा, वरना औलाद की मौत की कीमत कौन लगा सकता था। हफ्ता अकलीम के दौलत भी जिंदगी का नामल बदल तो नहीं हो सकती। राजू भी उदास और गुमसुम बैठा गाड़ी चलाता रहा और फिर उसने दिल का बोझ हल्का करने की खातिर कहा, ये अजमत बेग भी बड़ा हरामी और कुत्ती शह है और गिड़गिड़ की तरह रंग बदलने का आदी है। राजू, मैंने चौंक कर कहा, और उस साथ के साथ जो चक्कर शुरू किया गया है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो भी किसी वालदल हराम। और राजू अपना जुमला मुकम्मल करते करते पलट कर मुझे वजाहत तलब नज़रों से देखने लगा। ब्रादर, और तुम्हारी हिस्ट्री भी अब पूरी तरह चर्ज नज़र आती है। हो सकता है कि तुम्हारा शुबा ठीक हो। अजमत मजहब की आड़ में जो सियासी दंगल खेल रहा है उससे कुछ बैद भी नहीं। और पानी में मुंह डालकर दांत से सिक्का पकड़ने वाला मक्खी चूस 75 लाख की रकम का सदमा आसानी से बर्दाश्त नहीं करेगा। और क्या उस्ताद ने इन खतूत पर गौर ना किया होगा? वो सोचता कम और कर गुजरने का ज़्यादा आदी है। और राजू ने कहा और फिर कुछ सोच कर बोला, ब्रादर, क्या तुमने वह पुतले वाली बात उस्ताद को बता दी? नहीं, मैंने मसरत से जवाब दिया, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि जो आवाज़ मैंने सुनी थी वो उस्ताद भी सुन चुका है। क्या मतलब? और राजू चौंका। उस्ताद ने यही कहा था। और मैंने तफसील बताते हुए कहा, तअज्जुब है, और मैं भी दारुल इस्लाम में रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर वो कौन था और जिस ने तुम्हें आवाज़ देकर जगाने की कोशिश की थी? और मैंने सवाल किया। वो 100% तुम्हारी आवाज़ थी। और राजू ने पूरे एतमाद से जवाब दिया और फिर बोला कि हो सकता है कि अपने उस्ताद पर किसी बुजुर्ग का साया हो और जो उसे खतरों से आगाह कर देता है। हम दोनों बातें करते हुए पोस्ट ऑफिस के सामने से गुजर रहे थे कि राजू ने अकबी आईने की सिमत नज़र उठाई और उसके होंठों पर बड़ा जहरीला तबस्सुम उभर आया। क्या बात है? और मैंने राजू से पूछा, कोई खतरा? हो भी सकता है। और वो लापरवाही से बोला, एक सफ़ेद रंग की शेराड बड़ी देर से दुमछल्ला बनी हुई है। और जवाब में मैंने कुछ कहने की बजाय पलट कर पुश्त की जानब देखा। राजू का ख्याल गलत नहीं था और सफ़ेद रंग की शेराड एक महदूद फासले से हमारे पीछे आ रही थी और उसकी अगली सीट पर 2 आदमी मौजूद थे। बज़ाहिर वो बदमाश और दहशतगर्द नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उस ख्याल को मैंने फ़ौरन ही अपने ज़हन से झटक कर निकाल दिया। साइंस और ज़माने के साथ साथ हर शय तरक्की करती जा रही थी और पहले बदमाशों के हुलिये दूर से पहचान लिए जाते थे और उनका एक मखसूस स्टाइल आज खुद उनकी निशानदही कर देता था। लेकिन ज़माने की तरक्की के साथ दहशतगर्दों और बदमाशों ने भी अपने मैदान में खासी तरक्की कर ली थी। अब वो गले में सुर्ख रुमाल बांधकर और बालों को फैलाकर उनमें छल्ले बनाकर अपनी दादागिरी का ऐलान नहीं करते और अब वो बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियों में से एक आला और कीमती सूट में नज़र आने लगे थे। बज़ाहिर वो इंतहाई शरीफ और मासूम नज़र आते हैं और चाल ढाल और चेहरे से भी शराफत टपकती है, लेकिन जब वो बड़े मजमे में अचानक कलाशनकोफ या किसी और जदीद किस्म की खुदकार राइफल से बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर गोलियां चलाते हैं तो उनके चेहरे
मकरूह नज़र आने लगते हैं। दौलत और फैशन की बहुताब ने इंसान के तशख़्ख़ुस को इस कदर मसख़ कर दिया था कि स्याह और सफ़ेद की तमीज़ मुश्किल हो गई। राजू ने जानबूझकर 2-4 मोड़ काटे और फिर कार को एक कदरे सुनसान सड़क पर ले आया। अब हमारा शुबा यकीन में बदल चुका था कि सफ़ेद शरार बदस्तूर हमारे पीछे थी। मेरा ख्याल है कि ये अजमत बेग ही के शिकारी कुत्ते होंगे। और राजू ने संजीदगी से कहा, 75 लाख की रकम और मखसूस तस्वीर की वजह से उसे अगर खुजली शुरू हो गई है तो उसमें कोई तज्जुब की बात नहीं। तुम भूल रहे हो राजू, और इस गाड़ी में मैं भी मौजूद हूँ। क्या मतलब? और शराड़ में चौधरी नवाज के आदमी भी हो सकते हैं। मुमकिन है। और राजू ने लापरवाही से शाने उचकाए और फिर बोला, अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। वो क्या? नंबर 1 ये कि हम गाड़ी रोककर उन लोगों से इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज में दराफत करें कि उन्हें हम में से किसकी ज़रूरत है, और जवाब मिलने पर उनका मतलूबा बंदा उनकी गाड़ी में बैठकर मौत से बेशतर तौबा इस्तग़फ़ार कर ले और दूसरा बंदा खामोशी से जान बचाकर सिग्नल तोड़ता हुआ जान बचाकर भाग ले। और दूसरी सूरत यह है कि हम उनसे नाम पता ज़ात पर और ज़ात पात और शजरा हस्ब नसब पूछे बगैर गोलियों की ज़ुबान में बैतबादी का मुकाबला शुरू कर दें। तुम्हें इस खतरे के मौके पर भी मजाक सूझ रहा है? और क्या मशवरा है ब्रादर? और इस बार राजू ने बेहद संजीदगी से पूछा, और फ्राई करूं या आमलेट बनाकर चिट कर जाऊं? क्या हम उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते? पेच पड़ जाए तो ज़्यादा ढील देने से डोर उलझ जाती है और बिला वजह की खींचा तानी की जहमत भी उठानी पड़ती है। मैं कोई जवाब देना चाहता था कि अचानक शेराड की स्पीड तेज़ कर दी गई और सड़क का वो हिस्सा बिल्कुल वीरान था जिससे हमारे दुश्मन फ़ायदा उठाना चाहते थे। राजू ने पहले ही अपना अमेरिकन कोल्ट निकालकर गोद में रख लिया और मैंने इस मौका पर भी पिंडलियों में बंधा एक खंजर खोल लिया और सफ़ेद शराड और हमारी गाड़ी का फासला बेतदरीज कम हो रहा था। अब स्टीयरिंग वाला मेरा शिकार होगा। और राजू ने बड़े इत्मीनान से कहा, और दूसरे पर तुम्हारा इख्तियार होगा। राजू की गिरफ्त स्टीयरिंग पर और निगाहें बैक व्यू मिरर पर मरकूज थी और वो बड़ी खूबसूरती से शराड को रास्ता देने की खातिर गाड़ी एक तरफ कर रहा था। लेकिन फिर उसके करीब आते ही उसने हैरत अंगेज तौर पर नहायत फुर्ती से गोली चलाई और शराड बल खाती लहराती दाहिनी जानब करती चली गई। और राजू ने रफ्तार तेजी से हल्की की और मैं दरवाज़ा खोलकर नीचे रोल कर गया। शराड से कूदने वाला दूसरा शख्स हाथ में रिवाल्वर लिए मुड़ से बेमुश्किल 10 गज के फासले पर था और उसने शराड की आड़ ले रखी थी। सिर्फ गर्दन और चेहरे का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। मेरी गाड़ी से रोल होते ही उसने यक्के बाद देगरे 2 फायर झोंक मारे, लेकिन मैं हैरत अंगेज तौर पर बच गया। राजू ने खतरनाक सिचुएशन महसूस करके अमेरिकन कोल्ट को दोबारा जहमत देने की कोशिश की, लेकिन मैंने चीख कर उसे मना कर दिया और मेरी आवाज़ सुनकर रिवाल्वर वाले का राजू को ख्याल आ गया होगा। उसने पोजीशन बदल कर राजू को देखने की कोशिश की और वही एक लम्हा मेरे लिए बहुत काफ़ी था। मैंने पंजे जोड़कर अपना जिस्म को कमान की सूरत में तेजी से उठाया और उसके साथ ही मेरा सीधा हाथ पूरी तरह एक्शन में आ गया और जिसमें खंजर मौजूद था। मैंने जाविया देखकर खंजर फेंका जो लहराता हुआ दुश्मन के गले में जाकर फंस गया और उसकी कर्बनाक चीख और मेरी जुबान से उस्ताद जिंदाबाद के लफ्ज़ एक ही साथ अदा हुए थे। और सड़क पर इस वक्त भी दूर दूर तक ट्रैफिक का कोई नामो निशान नहीं था। इसलिए मैं तेजी से उठकर गाड़ी में जा बैठा और दूसरे लम्हे गाड़ी हवा से बातें करने लगी। एक मशवरा दूंगा ब्रादर। और कुछ दूर निकल जाने के बाद राजू ने कहा, सड़कों और बाज़ारों में चाकू का इस्तेमाल से कम किया करो और मकतूल बच जाने की सूरत में ज़्यादा शोर शराबा शुरू कर देता है। लेकिन जो शख्स गोली का शिकार होता है उस गरीब को अंग्रेज़ों की रूह को सवाब पहुंचाने की खातिर थैंक्स यू कहने का मौका भी नहीं मिलता। हम दोनों इसी किस्म के दिलचस्प बातचीत करते शीरा को सूरत हाल से आगाह करने की खातिर 2 नंबर के अड्डे पर पहुंचे। और ये शीरा के गुरा का पुराना दस्तूर था कि वारदात करने के बाद सबसे पहले उसकी इत्तला शीरा को दी जाए और फिर उसी के मशवरे के बाद आइंदा के लिए लाहे अमल इख्तियार किया जाए। गाड़ी को पार्किंग लॉट में खड़ा करने के बाद हम अंदर दाखिल हुए तो वहाँ कुछ अफरा तफरी सी महसूस हुई और हम तेज़ तर कदम उठाते अंदरूनी सेल में पहुँचे तो वहाँ अड्डे के तकरीबन तमाम अफराद मौजूद थे और वह घेरे की शक्ल में खड़े थे। उनके दरमियान शेरा अलग नजर आ रहा था, लेकिन उस वक़्त हमने दूर ही से अंदाज़ा लगा लिया कि वो खुशगवार मूड में नहीं। कोई ख़ास बात? और राजू ने खास साथी से दरियाफ़त किया। हाँ, आज हमने काली भेड़ पकड़ी है। काली भेड़? राजू चौंका। किसकी बात कर रहे हो?
बहादुर की राजू के साथ साथी ने बताया, और जिसे आज तक हम बहादुर समझते रहे वो तो ज़ात का चमार निकला। क्या मतलब? और खान दिलावर हमें देखकर कदम बढ़ाता आगे आ गया और उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। बहादुर का क्या चक्कर उस्ताद? और राजू ने खान दिलावर से दरियाफ्त किया। इस तुखमे खंजीर ने हम सबको यतीम कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अपने उस्ताद की दूरबीन नज़रों ने उस हरामजादी के पजामे के अंदर की असलियत भी बेनकाब कर दी। क्या बहादुर मुसलमान नहीं था? और मैंने भी तज्जुब का इजहार किया। जहाँ सो अपने होते हैं वहाँ एक नमक हराम दुश्मन की भी गुंजाइश निकल आती है। और खान दिलावर ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। सूरत शक्ल से साला मुसलमान ही नज़र आता था, कलमा और दुरूद भी पढ़ता था, लेकिन आज इंकशाफ हुआ कि वो ज़ात का चमार है। और मेरा बस चले तो खाल खींच कर भूसा भरवा दूं और किसी बड़ी पुड़ी सड़क के बीच चौरस्ते पर लटका दूं, ताकि क़यामत तक उसकी ज़ात बरादरी वाले राम राम सत्य का नारा लगाते रहें। खान दिलावर भी गुस्से में भरा हुआ था, इसलिए बात ठीक तरह से समझ में नहीं आई। और हम भीड़ भाड़ से गुजर कर आगे पहुंचे तो बहादुर नामी शख्स, जो 2 नंबर के अड्डे पर गुज़श्ता 1 साल से मुलाज़म था और ज़मीन पर चित पड़ा इस तरह हाँप रहा था और उसके जिस्म की हालत बता रही थी कि अड्डे के हर शख्स ने उस पर अपना थोड़ा बहुत गुस्सा उतारने की कोशिश की थी। उसके जिस्म के कपड़े तार तार हो रहे थे और चेहरे पर जगह जगह नील पड़ चुके थे। अड्डे के तमाम करिंदे वहाँ मौजूद थे और उनकी निगाहों में नफरत और हकारत के साथ साथ इंतकाम भी मौजूद था, लेकिन वह शेरा की वजह से चुप थे। और वो एक जनब सीना ताने खामोश खड़ा बहादुर को अपनी बड़ी खौनख्वार नज़रों से घूर रहा था। मरना पसंद करेगा? और अचानक शेरा ने सफाक लहजे में कहा, नहीं नहीं। और बहादुर गड़गड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो और मैं वचन देता हूं कि 2 रोज़ के अंदर अंदर तुम्हारा मुल्क छोड़कर अपनी मनहूस शक्ल को कहीं और ले जाऊंगा। तुझे यहाँ किसने मुलाजमत दिलाई थी? और शेरा ने सर्द लहजे में दरियाफ्त किया, वो अब इस दुनिया में नहीं। और बहादुर ने सहमे लहजे में जवाब दिया, किसका माल खा रहा है? तुम्हारा उस्ताद, तुम्हारा। शेरा की भरपूर लात उसके पेट पर पड़ी तो वह बिलबिलाता हुआ दोहरा हो गया और उसकी कर्बनाक चीखें बुलंद होने लगी। खामोश। और शेरा ने खुरकी लगाई तो उसने चुप होने के साथ साथ हाथ जोड़ लिए और अब वो जुबान खामोशी से रहम की भीख मांग रहा था। उसकी हालत शेरा की एक ही ठोकर से गैर हो गई और फिर शेरा के हुक्म पर उसे एक अलग कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां मेरा खान दिलावर, राजू और शेरा के सिवा कोई और नहीं था और बाकी तमाम अफराद बेदस्तूर सहन में जमा थे। अब बोल नमक हराम। और शेरा ने करख्त आवाज़ में पूछा, और मोलसरी का दरख्त तुझे पसंद है ना? उस्ताद, मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, और भूल हो गई थी मुझसे। शेरा ने दूसरी ठोकर रसीद की तो बहादुर की आंखें हल्कों से बाहर उबलने लगीं। सीधी तरह बकना शुरू कर दे। और इस काम के तुझे कितने दाम मिले थे? पूरे 5,000। और 5,000 1 हफ्ते के बाद मिलने वाले थे। और तेरे इस नाहंजार बाप का नाम क्या है? और जिसने तुझे खरीदा था? वो अजमत बेग था। और बहादुर ने रुक रुक कर जवाब दिया, उसके अलावा वो इस अड्डे पर तो तूने और क्या क्या गुल खिलाए हैं? और शेरा ने से बदस्तूर तेज नज़रों से घूरते हुए पूछा, और कुछ भी नहीं उस्ताद। और बहादुर हाथ बांधे खड़गड़ाया, और ये मेरी पहली बोल थी, खान दिलावर। और शेरा ने खान दिलावर को मुखातब करके कहा, इसने सच बोलकर हमसे रहम की दरख्वास्त की है, क्या हुक्म है उस्ताद? इसे खामोशी से ले जाकर समुंदर में साहल से बहुत दूर छोड़ाओ। और शेरा हकारत से बोला, या तो यह अभी जानवरों की खुराक बन जाएगा या फिर हमेशा के लिए तय में बैठ जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, और फिलहाल इसके बारे में किसी बाहर वाले को कानो कान खबर ना हो, और हमारे लोगों को भी समझा देना। क्या अजमत बेग ने हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश की है? और खान दिलावर ने मूंछों पर ताव देते हुए धीमी आवाज़ में कहा, इजाज़त हो तो समुंदर से वापसी पर उसे भी। नहीं, अभी उसकी ज़रूरत नहीं। और शेरा ने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। खान दिलावर के जाने के बाद शेरा ने बताया कि जेल से वापसी के बाद ही वो बहादुर की मशकूक हरकतों को ख़ास तौर पर नोट कर रहा था। और फिर मोलसरी की जड़ से बरामद होने वाले पुतले के बारे में उसने जब इस्तफार किया तो बहादुर खौफ से थर थर कांपने लगा। और उसके बाद जो कुछ हुआ वह हमारी नज़रों के सामने हुआ। राजू ने अड्डे के दूसरे साथियों को किसी बहाने से मुतमिन कर दिया और उसकी गैर मौजूदगी में शेरा ने मुझसे कहा, शहजादे, और तुम वो दूसरे खुश नसीब हो और जिसको वो पुर इसरार आवाज़ सुनाई दी। उसके अलावा मैं तुम्हारा शुक्रगुजार भी हूँ कि अगर तुमने इस बात को महज ख्वाब समझकर नज़रअंदाज कर दिया होता तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ ना कर सकता।
मैंने जल्दी से जुमला मुकम्मल किया तो शेरा मुस्कुरा दिया और फिर संजीदगी से बोला, मैं शायद अभी तक पूरी तरह तुम्हें पहचान नहीं सका। क्या मतलब? और मैंने चौंक कर पूछा। तुम किसी और ही रास्ते के मुसाफिर लगते हो, शेरा ने कहा, और तुमसे बिछड़ जाने का मुझे दुख जरूर होगा, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने रंग में रंगने की कोशिश भी नहीं करूंगा। अच्छा होगा कि तुम इंसानों की दुनिया में वापस लौट जाओ। और क्या ये इंसानों की दुनिया नहीं है? और मैंने शेरा से सवाल किया। नहीं, और शेरा ने कुछ तवक्कुफ से कहा, हालात के शिकंजे में फंसने के बाद अब हमारे पास जिंदा रहने का बस एक ही रास्ता रह गया है। कत्ल, गारतगरी, लूट मार, अगवा बराए तावान, धमाके, दहशत गर्दी और दूसरों को अपने से हकीर समझना। और तुम अभी इन बातों को नहीं समझोगे, लेकिन यह हकीकत है कि हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उस पर वापसी मुमकिन नहीं। आज हमारे रंग ढंग देखकर कानून नाफज करने वाले भी हमसे दूर ही रहते हैं, लेकिन अगर हमने पटरी बदल ली तो कल यही हमें हवालात में बंद करके टिकटकी पर हंटर बरसाने से भी दरेग नहीं करेंगे। और बाजार का भाव एक बार चढ़ जाए तो उतरने का नाम नहीं लेता, और हमारी भी ऐसी ही मिसाल है। हम एक बार शराफत का लिबादा उतार चुके हैं और अब वो लिबास हमें रास नहीं आएगा, और अजीब दस्तूर है यहाँ का। तुमने मुझे सहारा दिया है उस्ताद, और तुम ना होते तो मैं ना जाने कहाँ कहाँ रांदा दरगार हो रहा होता, और मेरे पास तो सर छुपाने का कोई ठिकाना भी नहीं। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा? क्यों? और शेरा मुस्कुराया। क्या नाजरीन का ख्याल दिल से निकाल दिया है? और ये मुमकिन नहीं उस्ताद। और मैंने दबी ज़बान में जवाब दिया, यही तो मैं भी कह रहा हूँ शहजादे। शबाब और रुबाब की बातें करने वाले बारूद के कसीफ धुएं में सांस नहीं ले सकते। मोहब्बत इंसानियत है और जंग और एक दूसरे से नफरत का आधार। ये और बात है कि हालात कभी कभी इंसान को डानो डोल कर देते हैं और वो ढलमल यकीन होने लगता है। कदम डगमाने लगे तो फैसला करने में हमेशा दुश्वारियाँ पेश आती हैं। मैं उसे इंसान की खुदगर्दी कहूँगा। और शेरा ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। मर्द हजार जगह अपनी मर्जी और खुशी से मुंह मारता फिरे और उसे वो अपनी मर्दानगी से ताबीर करता है, लेकिन औरत अगर ज़बरदस्ती किसी के हवस का निशाना बन जाए, ताकत के बल पर उसे बेआबरू कर दिया जाए, तो उस पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। मुआशरे की निगाहों में उसका मुकाम नहीं रहता और कोई उसका हाथ थामने की कोशिश भी नहीं करता। अपनी अपनी बदनामी और रसवाई से डरते हैं। लेकिन मैं उन्हें मर्द नहीं कहता, और ये नामर्द होते हैं, हिजड़े होते हैं और सीना तान कर किसी का सहारा बनने से कतराते हैं। किसी की कमज़ोरी और मजबूरी पर तरस खाने के बजाय मुआशरे के खौफ से पीछे हट जाते हैं। मेरा बस चले तो उनकी उंगलियों को जड़ से काट डालूं, और जो किसी मजबूर औरत की बेबसी पर उठती हैं उस मुआशरे को तेल छिड़कर आग लगा दूं, और जो ऐसी बेसहारा औरतों को पनाह देने के बजाय दामन समेट लेता है। शुरफा उसे हमेशा के लिए गुनाह की दलदल में धकेल कर रोज़े रोशन में उसकी बेगैरती और बेशर्मी का डंका पीटते हैं, और फिर रात की तारीकी में मुआशरे और समाज के यही ठेकेदार डंके की चोट पर उन औरतों की आगोश में अपने अंदर काला सर्द करने की खातिर बाला खाने पर जाने वाले दीनों पर बुलंदी की तरफ परवाज करते नजर आते हैं। अख थू, लानत है ऐसे हरामजादों पर। शेरा अपनी रवानी में कहे जा रहा था और फिर उसने खामोश होकर मुझे अजीब सी नज़रों से देखता रहा और फिर बड़े प्यार से बोला, शहजादे, नाज़नीन मजलूम है और मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। जोहरी नहीं हूँ, लेकिन हीरे की चमक खुद अपनी शराखत करा देती है। उसने अपने ज़मीर को अभी तक मनफी शोहरत के शरीफ ज़ादों से महफूज रखा है, और उसकी आंखों में मुझे हर बार एक ही मंजिल नजर आई, और जहाँ तक पहुँचने की खातिर उसकी रूह बेचैन रहती है। वो मंजिल तुम हो शहबाज शहजादे, हाँ तुम। और उसने अभी तक तुम्हें पाने की खातिर खुद को जिंदा रखा है। तुमने भी अगर उसे सहारा ना दिया तो वो बिखर जाएगी, और फिर शायद उसे कोई समेट ना सके, और तुम भी नहीं। मैं तुम्हारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ उस्ताद, लेकिन वह अपने माहौल, अपने हाल और अपने गिर्द गिर्द घात लगाए हुए उन लोगों से खौफजदा है जो चौधरी नवाज के बाद उसकी कमाई के ठेकेदार बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तुझे मुझ पर यकीन है शहजादे? और शेरा ने बड़ी संजीदगी से मेरी आंखों में झांका। ये तुम क्या कह रहे हो उस्ताद? और मैं तुम्हें अपना मौसल समझता हूँ, और फिर सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तैयार हूँ उस्ताद, लेकिन शायद ना दो। इतनी जल्दी कोई फैसला मत करो शहजादे, और जख्म भरने में कुछ वक्त तो लगता है। शेरा मुझे हालात की ऊंच नीच से आगाह करता रहा और नाज़रीन के सिलसिले में किसी बुजुर्ग की तरह मुझे हमवार करता रहा। कानून की निगाहों में वो शहर का सबसे बड़ा बदमाश था, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर शेरा को लोग बदमाश कहते हैं तो फिर शरीफ किसे कहते हैं। फिर राजू के वापस आ जाने से गुफ्तगू का रुख बदल गया, और मुझे इस बात पर हैरत थी
کہ عظمت بیگ نے بہادر کے ہاتھوں شیرہ کی زندگی کو موت سے ہمکنار کرنے میں کوئی دقیقہ فروز گزاشت نہیں کیا تھا، لیکن شیرہ نے اس کے باوجود اپنے تمام کرندوں کو بڑی سختی سے تاکید کر دی کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی عظمت بیگ سے الجھنے کی کوشش نہ کرے۔ شیرہ کی باتوں نے میرے جذبوں کو مہمیز کر دیا اور سینے کے اندر برسوں سے دبی دبی چنگاریاں ہوا پا کر شعلہ بن گئیں۔ شیرہ نازو کا کوئی عزیز یا رشتہ دار نہیں تھا اور ایک اصول پسند انسان تھا جس نے بڑے جذباتی انداز میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جیل کی آہنی سلاخوں سے باہر آتے وقت اس نے خاص طور پر مجھے 2 نصیحتیں کی تھی: لنگوٹ کا سختی سے خیال رکھنا اور کسی ایماندار اور شریف آدمی پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ لیکن وہی شیرہ اب مجھے نازو کو اپنا لینے کی تلقین کر رہا تھا، اور وہ نہ کہتا جب بھی میرے اندر نازو کو پا لینے کی خواہش ہمیشہ جوان رہتی۔ اس بدنصیب پر جو گزری تھی اور میں اس کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا، اور دنیا کی کوئی بھی لڑکی پہل اپنے آپ کو خوشی خوشی کسی کے سامنے خواہ نعمت بنا کر پیش نہیں کرتی، اور ایک خوف، ایک خطرہ اور کچھ اندیشے لاحق ہوتے ہیں جو نہ سمجھ ہونے کے باوجود اسے آگ اور پٹرول کے قریب سے بھڑکتے والے خطرناک شعلوں سے خوفزدہ کرتے رہتے ہیں۔ سہاگ رات میں بھی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنے کے باوجود مرد زن کے درمیان ایک حجاب مانا رہتا ہے، اور نازو تو پھر سمجھدار لڑکی تھی۔ ہمارا لڑکپٹن ایک ہی ساتھ گزرا تھا، اور جوانی کی سرحدوں میں پہلا قدم رکھتے ہی وہ مجھ سے بھی ہوشیار رہنے لگی تھی۔ میرے قریب ہونے کے باوجود اس نے کبھی مجھے اپنے جسم کو چھونے کی اجازت نہیں دی تھی، اور پھر بھلا وہ چودھری نواز جیسے گنڈوں کو کیسے منہ لگا سکتی تھی، اور اس پر یقیناً ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہوں گے۔ اس کی پاکیزگی کو پامال کرنے کی خاطر جبر و تشدد کا مظاہرہ کیا گیا ہوگا، اور اسے بے عزت اور بے آبرو کرنے کی خاطر ابوالحوثوں نے سختیاں کی ہوں گی، اور اس کی چیخو پکار کو روکنے کی خاطر اس کے منہ میں کپڑے ٹھونس دیے گئے ہوں گے، اور وہ کسی ذبح ہوتے ہوئے معصوم جانور کی مانند تڑپی ہوگی، پھڑ پھڑائی ہوگی، لیکن بے بسی اس کا مقدر بن گئی ہوگی۔ وہ اب زندہ ضرور تھی، لیکن شاید میرے انتظار میں، اور ایسا نہ ہوتا، اور اگر اسے عیش و عشرت اور گناہ کی زندگی براس آ گئی ہوتی تو وہ مجھے پہچاننے سے انکار کر دیتی۔ اشاروں کنایوں میں مجھے یہ احساس دلانے کی کوشش کبھی نہ کرتی کہ وقت نے میری نگاہوں کے زاویوں کو اتنا بدل دیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو قریب سے دیکھ کر بھی انجام بنا بیٹھا تھا، اور میرے دل میں کوئی دھڑکن پیدا نہیں ہوئی تھی۔ محبت کے جذبوں میں ایک ہلکا سا ارتعاش بھی نہیں ہوا، اور وہ کرید کر مجھے گرد آلود ماضی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اور پھر اس نے میرے باپ کا نام لیا تو مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے حالات کے تانے بانے کھولے اور حالات کا جائزہ لیا تو احساس ہوا کہ نازو نے صرف اور صرف میرے انتظار میں زندگی کے کتنے کھٹن لمحے اذیتیں برداشت کر کے گزارے ہوں گے، اور میں اس کا مجرم تھا۔ وہ بے گناہ تھی، معصوم تھی، اور اس کے اندر کی پاکیزگی کو ابھی تک دنیا کی کوئی طاقت پامال نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے جرم کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی خاطر چودھری نواز کی موت کا فیصلہ کیا، اور اس کے خون سے ہاتھ رنگے تو نازو یک لخت محتاط ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنے قریب آنے سے منع کر دیا، اور اسے مجھ سے زیادہ گرد و پیش کا اندازہ تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس کی کوٹھی کے قریب جانے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤں۔ چودھری نواز کے گرگے قدم قدم پر گھات لگائے میرے انتظار میں بیٹھے تھے، اور مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ موت سے بھاگ کر میں اب جا بھی کہاں سکتا تھا، اور میری موت تو اسی روز واقع ہو گئی تھی جب ساجد کریمی نے جان بوجھ کر مجھے بے گناہ کو حوالات میں بند کیا تھا، اور پھر میرے مجبور باپ کی موت نے میری روح کو لرزا دیا، اور اس کے بعد جیل میں گزرے ہوئے شب و روز میرے مستقبل کی راہوں پر نو انٹری کا بورڈ بن گئے تھے۔ اور شیرہ نے میرا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو شاید پولیس کے کارندے مجھے عادی مجرم بنانے میں کسی کاہلی کا ثبوت نہ دیتے۔ ساجد کریمی پیش رہا، لیکن شیرہ کی پناہ نے ان کو مجھ سے دور رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں اپنی خواب گاہ میں بستر پر نیم دراز تصورات میں زندگی کی گزرگاہوں پر بھٹک رہا تھا، اور نازو نے مجھے شناخت کرنے کے بعد میرے دل میں دبی دبی چنگاریوں کو اپنی باتوں سے شعلہ بنا دیا تھا، اور شاید اس وقت وہ جذباتی بن گئی تھی۔ ایک طویل مدت کے بعد اسے اس کا بچھڑا ہوا ساتھی ملا تو تمام مصلحتوں کو فراموش کر بیٹھی، لیکن بعد میں اسے احساس ہو گیا کہ مجھے اپنا کر شاید وہ خود غرضی کا مظاہرہ کرے گی، اور وہ جن راہوں پر مسکرانا سیکھ گئی تھی اس کے ہر سنگ میل پر گناہ آلود اور شرمناک داستانیں رقم تھیں۔ ان راہوں پر وہ مجھے
अपना हम सफ़र बनाकर अपनी पाक मोहब्बत को रुसवा नहीं करना चाहती थी, और मेरे इंतज़ार में उसने जो घड़ियां गुजारी थीं, मुझे अपना लेने के बाद उन मरहलों का मकसद फौत हो जाता। ये मेरी नहीं नाजों की सोच थी, और मैं उसे दिल की धड़कनों में छुपा कर ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर चुका था। लेकिन वो कतरा रही थी, और वो मुझसे सिर्फ दोस्ती का रिश्ता कायम रखने की ख्वाहिशमंद थी। दूसरे रिश्तों के हसीन ख्वाबों को उसने अपनी मजलूमियत का समरा समझकर थपक थपक कर अपने वजूद के नहा खानों में सुला दिया, और वो उन जज्बों को बेदार करने से खौफ महसूस कर रही थी, और शायद वो खुद को मेरे काबिल नहीं समझ रही थी। माजी के दर्दनाक तजर्बों ने उसे इस कदर समझा दिया था कि वो उसके आसार के अंदर बंद होकर रह गई, और बाहर आना शायद उसके बस में भी नहीं था। कदम कदम उसके शनासा मौजूद थे, और वो भाग जाती तो कहाँ। शेरा की बातों ने मेरे दिल में मोहब्बत की जो आग भड़काई, उसके शोले कम होने के बजाय बुलंद से बुलंदतर होते चले जा रहे थे, और मैं नाज़ों के दिल की कैफियतों से बेखबर नहीं था। वो मुझे अब भी दिलो जान से चाहती थी, और मेरे एक इशारे पर उसने अजमत बेग को नंगा कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ उसने अपने हाल को भी उरिया करके मुझे दूर रहने का मशवरा दिया था, और वो मुझे किसी धोखे किसी फ्रेम में नहीं रखना चाहती थी। और एक मेरी मोहब्बत ही थी जिसकी पाकीज़गी को कोई दागदार नहीं कर सका, और फिर वो खुद उसकी बदनामी का जरिया किस तरह बन सकती थी। मेरी वहशतों में इजाफा हुआ तो मैं ख्वाबगाह से निकल कर बाहर आ गया, और राजू सामने ड्राइंग रूम में बैठा किसी हिसाब किताब में मसरूफ़ था। मुझे देखा तो तेज़ी से सब कुछ छोड़कर मेरे करीब आ गया, और उसने मेरे चेहरे के तासरात को बहुत गौर से देखा, और वहाँ जो दास्तान रकम थी उसे पढ़ने में राजू को कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। उसने एक नज़र अपनी दस्ती घड़ी पर डाली, और उस वक़्त रात के 11 बज रहे थे। खैरियत तो है ब्रादर? और उसने दोबारा मुझ पर नज़रें जमाकर बड़ी अपनाई से दराफत किया, क्या नींद नहीं आ रही राजू? और मैंने अपना निचला होंठ दांतों तले जबाते हुए जवाब दिया, मैं इस वक्त बड़ी शदीद घुटन महसूस कर रहा हूँ, और कुछ देर के लिए बाहर जाकर खुली फ़ज़ा में सांस लेना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं भी तुम्हारे साथ। नहीं, और मैंने उसे जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया, और मुझे इस वक्त किसी की रफ़ाकत नहीं, तन्हाई की ज़रूरत है। हम दो कब हैं ब्रादर? और राजू ने बड़े खलूस से कहा, और मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है, लेकिन जहाँ दोस्ती होती है वहाँ शर्मो लिहाज और मसलतें नहीं होती। और राजू ने मुझे कायल करने की कोशिश की। ब्रादर, मेरा तकिया कलाम नहीं, और मैं दिल की गहराइयों से तुम्हें भाई कहा है, भाई समझा है, और मैं जानता हूँ राजू, मगर फिर भी अगर मगर से काम ले रहे हो। और उसने बड़ी मासूमियत से शिकवा किया, और क्या मुझे अपनी खुशियों में शरीक नहीं करना चाहते? तुम्हारा अंदाज़ा गलत है। और मैंने दिल्ली महसूस कर जवाब दिया, और मैं इस वक्त खुश नहीं। मुबारकबाद नहीं दोगे? और वह मैंने खेत अंदाज में बोला, किस बात की? मैंने तुम्हारे दिल का चोर जो पकड़ लिया। और उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, तुम इस वक्त अपनी नादों के लिए सोच रहे हो, और क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं। और मैंने मुख्तसरन एतराफ़ कर लिया। राजू ने गहरी संजीदगी इख्तियार कर ली, लेकिन अगर तुम दोस्त हो और भाई हो तो इसका जिक्र किसी और से नहीं करोगे? नहीं करूँगा। लेकिन यह अचानक तुम्हें इतनी रात गए वहाँ जाने का ख्याल कैसे आ गया, जबकि नाज़नीन तुम्हें तमाम जग खतरों से आगाह कर चुकी है? मैंने जवाब में उससे अपने और शेरा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से आगाह कर दिया, और राजू खामोशी से सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई तासरात नहीं उमड़े, और हालात ने उसे सर्दो गर्म का आदी बना दिया था। और मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो वह बोला, मैं तुम्हारे जज्बों को सलाम करता हूँ ब्रादर, और तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी अपनी मोहब्बत के कर्ज को चुकता करने में देर ना करता। लेकिन एक सवाल अभी भी जवाब तलब है। वो क्या? अगर नाज़नीन ने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया तो इसका फैसला वक़्त करेगा। और मैंने साफ गोई से कहा, और कबल आज वक़्त मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम शायद ठीक कह रहे हो। और राजू ने कुछ तवक्कुत से जवाब दिया, और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो ऐन वक़्त पर हालात के मुताबिक किए जाते हैं, और शायद वही फैसले दुरुस्त होते हैं। फिर भी मेरी एक बात का ख्याल रखना, और नाज़नीन को फ़िलहाल किसी बात के लिए मजबूर ना करना। क्या मतलब? उसे सोचने के लिए कुछ वक्त ज़रूर देना। और राजू ने मुझे समझाया, और ज़ख्म भरने और मौसम तब्दील होने में कुछ वक्त ज़रूर लगता है। और उसके अलावा मेरा ज़ाती तजर्बा भी यही है कि जल्दबाजी में जिन फैसलों पर छलांग लगाई जाती है वो हमेशा पूब बारा नहीं होते। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन दानिशमंदी यही है कि तैश में आकर मसलतों को फरामोश ना किया जाए। और मैं तुम्हारी बातों का ख्याल रखूँगा।
میں کچھ دیر کے بعد پوری طرح تیار ہو کر دارالاسلام سے نکلا اور راجو کے اصرار پر میں نے اپنے چہرے میں تھوڑی سی تبدیلی بھی کر لی، اور شاید ان تبدیلیوں کی وجہ سے میرے دشمن مجھے آسانی سے شناخت نہ کر پاتے، لیکن ایک بات طے تھی کہ اتنی رات گئے ناظرین سے اس کی خلوت قدہ میں جا کر میں ان کے لیے تشویش کا سبب ضرور بن سکتا تھا۔ راجو نے مجھے جو کار دی تھی وہ عام استعمال میں نہیں رہتی تھی، اور اس کا کوئی ریکارڈ بھی کہیں محفوظ نہیں تھا۔ پکڑے جانے کی صورت میں بھی اس کے کویف کسی کی نشاندہی نہیں کر سکتے تھے، اور راجو نے مختصراً مجھے بتا دیا تھا کہ وہ کار انتہائی اہم موقع پر سڑک پر لائی جاتی ہے۔ مجھے ناظرین کی کوٹھی تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، اور میں نے مثلاً گاڑی کو کوٹھی سے 2 بلاک پہلے ایک بنگلے کی پشت پر چھوڑ دیا۔ وہاں سے ناظرین کی کوٹھی کا سفر میں نے بڑے محتاط انداز میں پیدل ہی طے کیا، اور اس کی کوٹھی پر اس وقت بھی پہرے دار محتاط نظر آ رہے تھے، اور میں ٹہلتا ہوا کوٹھی کی پشت کی جانب آ گیا۔ بظاہر وہاں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اندر کی جانب سے اس عقبی حصے کی چوکیداری بھی ضرور کی جا رہی ہوگی، اور میں کچھ دیر تک اندر کی سنگون لیتا رہا، اور ناظرین نے جن خطروں کا اظہار کیا تھا وہ یقیناً غلط نہیں ہوں گے، لیکن اس کی کوٹھی تک جانے کے بعد واپس لوٹ آنا بھی مجھے منظور نہیں تھا، اور میرے آگے پیچھے کوئی رونے والا بھی نہیں تھا، اور جس کی فکر مجھے میرے ارادے سے باز رکھتی۔ میں نے ایک آخری بار پھر آگے پیچھے کا جائزہ لیا، اور پھر پھاٹک پر پاؤں جماتا ہوا دوسری جانب کود گیا۔ 4 دیواری کے ساتھ ڈم ڈم کی باڑ لگی ہوئی تھی، اور میں پنجوں کے بال نیچے کودا تاکہ کم سے کم آواز ہو، اور زمین پر قدم جماتے ہی میں تیزی سے لپک کر باڑ اور 4 دیواری کے درمیان مختصر سی جگہ میں دبک کر بیٹھ گیا، اور کوٹھی کے پچھلے کونوں پر بھی مدھم پاور کی بلب روشن تھے۔ میری آنکھیں دائیں بائیں کا جائزہ لے رہی تھی، اور مجھے حیرت تھی کہ ابھی تک کسی نے مجھے للکارنے کی کوشش نہیں کی، اور پہرے داروں کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن یا تو وہ کچھ دیر سستانی کی غرض سے اپنے کوارٹر میں چلے گئے تھے، یا پھر انہیں اس بات کی خوش فہمی لاحق تھی کہ چودھری نواز کے شکاری کتے کسی کو کوٹھی کے آس پاس پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے باڑ کی آڑ میں ہوتے ہی احتیاطاً سلنسر لگا ہوا ہاتھی اسلحہ نکال کر اس پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، اور میری دونوں پنڈلیوں پر تسمے کے ساتھ 2 خنجر بھی موجود تھے، جنہیں میں نے آڑے وقت کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ گزرنے والا ہر لمحہ میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا، لیکن میں خوف زدہ نہیں تھا۔ قید بامشقت میں نے مجھے بے حد سخت جان بنا دیا تھا، اور شیرا کی تربیت نے سونے پر سہاگے کا کام کر دیا۔ 15 منٹ تک میں سانسیں روکا بیٹھا رہا، اور پھر میں زمین پر لیٹ کر آہستہ آہستہ کوٹھی کی سمت رینگنے لگا۔ مجھے حیرت تھی کہ ابھی تک کسی سے میرا ٹکراؤ نہیں ہوا، اور میں کوٹھی کی عقبی دیوار تک پہنچ گیا، جہاں ایک لوہے کا پھاٹک غالباً ملازموں کے آنے جانے کے لیے موجود تھا، لیکن اندر سے متقفل نظر آ رہا تھا، اور مجھے اس کوٹھی کے راستوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ پہلی بار میں راجو کے ساتھ صدر پھاٹک سے اندر آیا تھا، لیکن اس وقت حالات مختلف تھے۔ میں نے اپنی پوزیشن تبدیل کی، اور اطراف میں کسی نادیدہ خطرے کے امکانات پر غور کرتا ہوا آہستہ سے پنجوں کے بل اٹھا، اور عمارت کی دیوار سے چپک کر بائیں ہاتھ والے کونے کی جانب قدم بڑھانے لگا، اور راستوں کی ناواقفیت کی وجہ سے مجھے اندر داخل ہونے کی خاطر بہرحال کوئی نہ کوئی رسک تو لینی تھی، اور میری نگاہیں بار بار ملازموں کے کوارٹرز کی جانب بھی اٹھ رہی تھیں۔ میرے ذہن میں اس وقت بھی نازوں کا تصور موجود تھا، اور شاید وہ اس وقت اپنی خواب گاہ میں مہو خواب تھے۔ ممکن ہے کہ عظمت بیگ کی طرح شرافت کا کوئی اور ٹھیکیدار رات کی تاریکی میں اپنا دل وابستگی کی خاطر اس کے پاس موجود ہو۔ چودھری نواز کی موت کے بعد یقیناً اس کے گرگوں نے ناظرین پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہوگا، اور حالات کے پیش نظر وہ ان کے اشاروں پر عمل کرنے پر مجبور ہوگی۔ ٹھیکیدار ایک ہو تو پابندیاں زیادہ نہیں ہوتی، لیکن حکم چلانے والے 10-12 ہوں تو انسان سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا، اور خدا جانے ناظرین کن حالات سے گزر رہی ہو، کیسی کہتے صعوبتیں جھیل رہی ہو، اور میں نادوں کے تصور میں کچھ ایسا غرق ہوا کہ احتیاط کے تقاضوں کو نظر انداز کر گیا۔ ابھی میں عمارت کے کونے سے چند قدم دور ہی تھا کہ اچانک کوئی ٹھوس اور سرد شے میری گردن سے لگی، اور اس کے ساتھ ہی کسی نے مدھم مگر سرسراتے لہجے میں کہا، خبردار کوئی حماقت نہ کرنا، ورنہ تمہاری لاش کے ٹکڑے جمع کرنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ مجھے اپنی قوت سماعت پر یقین نہیں آیا، اور وہ آواز کسی مرد کی نہیں ایک عورت کی تھی۔ اگر وہ دشمن ہوتی تو وارننگ دیے بغیر میری کھوپڑی اڑا سکتی تھی، اور چیخ کر اپنے دوسرے ساتھیوں کو خطرے سے آگاہ کر سکتی تھی،
लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और सिर्फ मुझे मोहतात रहने की खातिर तंबीह की। मैं अभी पूरी तरह अपने असाब पर काबू भी नहीं पा सका था कि उसी नस्वानी आवाज़ ने दोबारा आहिस्ता से मुझे मुखातब किया। कौन हो तुम? दोस्त होता तो ज़ाहिर है कि पिछले रास्ते से कभी ना आता, और मैंने भी नीची आवाज़ में जवाब दिया, और फौरी तौर पर उस पर एतमाद भी नहीं किया जा सकता था। मुमकिन है कि वह महज मेरी असलियत मालूम करने की खातिर नरमी का मुजाहरा कर रही हो। मैंने तुम्हारा नाम पूछा था और उसने कदरे तरमलाकर कहा, और फिर आतिशी असले की नाल का दबाव गर्दन पर बढ़ाते हुए बोली, रिवाल्वर को जेब में रख लो और वक्त बर्बाद किए बगैर मेरे सवालात का जवाब देते रहो। मैं मैडम नाजरीन के परस्तारों में से हूँ, और मैंने कुछ सोच कर रिवाल्वर जेब में रख लिया। कब से जानते हो मैडम को? जब से दिल ने धड़कना सीखा है और उसी के तस्वर से खेलता रहा हूँ। देखो, मुझे गलत मत समझो, और इस बार उसके लहजे में उलझन के साथ साथ अपनायत भी थी, और मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि तुम मुझसे तावन करो। क्या चाहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? और उसने अपना सवाल दोहराया। रशीद अहमद। और मैंने संजीदगी से अपना नाम बता दिया, और तुम्हारी मैडम मुझे शीदे के नाम से भी जानती है। मेरे पीछे पीछे चले आओ। उसने जवाब देने के साथ असले की नाल मेरी गर्दन से हटा ली, और मैं आहिस्ता से पलटा तो वो धड़ झुकाए पीछे की सिमत लौट रही थी, और मैंने एक लम्हे को उसकी हरकत का जायज़ा लिया और फिर उसके साथ साथ चलने लगा, और वह तमाम रास्तों से वाकिफ़ थी। मैंने उसके बारे में जो राय कायम की थी वो गलत नहीं थी, और वो मुझे रिहायशी हिस्से के एक कमरे तक ले गई और फिर पलट कर बोली, तुम अंदर जा सकते हो और मैडम तुम्हारी मुंतज़िर होंगी। एक सवाल मैं भी करूंगा। और मैंने उसको हुस्न का जायज़ा लेते हुए कहा, और मेरी मौसना का नाम क्या है? उसका जवाब भी तो मैडम से पूछ लेना। और उसने दाएं बाएं देखा और फिर तेज़ी से फिर घूम कर वापस चली गई, और मेरे ज़हन में बेशुमार सवालात उभर रहे थे। वो कौन थी कि जिसने नाजरीन के कमरे तक मेरी रहनुमाई की, और उससे मेरी आमद की इत्तला किस तरह हुई? चौधरी नवाज के वो शिकारी कुत्ते कहाँ मर गए थे जो शब और रोज़ मुझे भंबोर डालने की खातिर घात लगाए बैठे थे? और नाजो ने मुझे उसी खतरे के पेश नज़र अपनी कोठी से दूर रहने की ताकीद की थी। और क्या उसने गलत बयानी की थी, या फिर मुझे एक खूबसूरत लड़की के ज़रिए ट्रैप किया गया था? आखिर ख्याल के आते ही मैंने अपना रिवाल्वर दोबारा निकाल लिया, और अगर मौत ही मेरा मुकद्दर थी तो फिर मैं किसी चूहे की तरह नहीं मरना चाहता। और दुश्मनों को ललकार कर लड़ने मरने की बात ही तो कुछ और होती है, और शेरा ने मुझे मौका महल के एतबार से तमाम गुण सिखाए थे। मैं दरवाजे के साथ दीवार से चिपक गया, और फिर मैंने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। उस दस्तक की आवाज़ के साथ ही दूसरी जन्म से भ्रष्ट भी मारा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कौन है? और दूसरी जन्म से गोलियों की तरतराहट की बजाय नाजुक की सहमी हुई आवाज़ उभरी तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगीं। मैंने रिवाल्वर जेब में रखकर दरवाजे को खोला तो जैसे मेरी निगाहों में बिजली सी कूद गई। नाजो मेरे सामने अपने तमाम तरहशर सामानियों के साथ मौजूद थी, और शब ख्वाबी के लिबास में वो संगे मरमर से तराशीदा एक हसीन शाहकार नजर आ रही थी, और उसके दराज बाल शानों पर बिखरे नागरों की तरह बल खा रहे थे, और वह सहमी सहमी सी नजर आ रही थी। उसकी आंखें मुझे इस तरह घूर रही थी जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो, और वो इस वक्त कैफियत में भी सरतापा क़यामत नज़र आ रही थी। वो कमरा उसकी ख्वाबगाह नहीं, और फिर भी उसकी तज़ीन व आराइश काबिल दी थी। उसे किसी आर्जी इंतज़ारगाह के तौर पर इरास्ता किया गया था, और वह शायद मेरी ही मुंतज़िर थी। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे के कुर्ब को महसूस करते रहे, और फिर नादो के तराशीदा होंठों में अरताश पैदा हुआ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और उसकी सहमी हुई आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, और मैंने तुम्हें खतरों से आगाह कर दिया था। हाँ, और मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, और मुझे चौधरी नवाज की मौत के बाद ही एहसास हो गया था कि वह तुम्हारे ऊपर अरसा हयात तंग करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रही हूँ। और उसके लहजे में मोहब्बत की तड़प थी। पानी पर लाठी मारने से उसे दो हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता, और मैंने एक ही जुमले में दिल की तमाम दर्द थमोने की कोशिश की। वक्त हमेशा यकसा नहीं रहता, और वह होंठ चबा कर बोली, और फासले घटते बढ़ते रहते हैं। नब्ज़ की रफ्तार जारी रहे तो किसी को मुर्दा करार नहीं दिया जा सकता। और मैंने उसे कायल करने की कोशिश की। कुछ मर्ज ला इलाज भी होते हैं। और वह दिल महसूस कर बोली तो सांस की रफ्तार ने उसके ख्वाबीदा जज्बात को बेदार कर दिया, और उसके जिस्मानी नशीबो फराद मुतहरिक नज़र आने लगे। मायूसी गुनाह है। और मैंने पूरे एतमाद से जवाब दिया, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? और वो उलझ गई, और मैं जिन हादसा से दो चार हुई हूँ तुम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
اس کے باوجود تم بہتے پانی کی طرح پاک اور صاف ہو اور خود کو میری نظروں سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ نہیں، اور وہ جذبات کی رو میں بہکنے لگی، اور مجھے اب نگاہوں پر اعتماد نہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ کیا تم اپنے شیدے کو ٹھکرا دو گی؟ اور تم یہ سوال نادر سے کر رہے ہو جو مر چکی ہے اور وہ مجسمے کرب بن گئی۔ اب صرف نازنین زندہ ہے، اور پھر شیدے کو بھی مر جانے دو۔ اور میں نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا۔ میں واپس جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ دشمن کی جانب سے چلائی جانے والی گولی رشید احمد اور شیدے کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرے گی۔ اور میں جانے کے لیے پلٹا تو وہ ہرنی کی طرح تڑپ کر میرے راستے میں حائل ہو گئی۔ مجھے آزمائش میں مت ڈالو، اور وہ تڑپ کر بولی، اور میں اب تمہارے قابل نہیں رہی۔ 3 سال کی قید بامشقت نے میرے نام پر بھی مجرم کا ٹھپا لگا دیا ہے، اور تمہاری بات اور ہے۔ تم مرد ہو اور اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دے سکتے ہو، لیکن میں شیشے کے گھر میں بند کر دی گئی ہوں، اور ایک ذرا سی ٹھیس لگی تو کرچی کرچی ہو جاؤں گی۔ اور اس کی آواز میں ماضی کی داستانیں سسک اٹھیں۔ تمہیں اس وقت میرے یہاں آنے کا علم کس طرح ہوا؟ اور میں نے اسے سنبھالنے کی خاطر گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ جہاں 100 دشمن ہوتے ہیں وہاں ایک دوست بھی مل جاتا ہے، راجو۔ اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس کی خاموشی اس بات کا اقرار تھی کہ راجو نے اسے میرے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا، اور وہ پلکیں جھپکائے بغیر مجھے تکے جا رہی تھی۔ اور پھر اس کے دل کا درد سمٹ کر آنکھوں میں اترا تو وہ دراز پلکوں پر شبنمی قطرے جھلملانے لگے، اور وہ آنسو اس کی پاک دامنی کے دامن تھے، اس کی بے بسی کے گواہ تھے، اور اس کی معصومیت پر مہر صداقت تھے۔ وہ شمع بن کر پگھلنے لگی تھی، اور میں نے اس کی سانس آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا، اور قدم بڑھا کر اپنے ہونٹوں کے تشنگی میں جذب کر لیا۔ اور وہ اپنے آپ کو میں اس قدر محو تھی کہ اسے میری جسارت کا گمان بھی نہیں ہو سکا۔ اور وہ اس وقت چونکی جب وہ میرے بازوؤں کے حصار میں آ چکی تھی، اور دل کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہوئیں تو وہ قسم کھا کر بولی، شیدے، میرا امتحان مت لو نازو، اور تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اور میں نے ہاتھوں کا حلقہ ذرا اور تانگ کیا تو اس کی قوت مدافعت دم توڑنے لگی۔ محبت کے لازوال جذبوں نے اسے شکست تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا، اور اس نے اپنے تپتے ہوئے ہونٹ میری گردن پر رکھ دیے۔ اس کی بکھری بکھری سانسیں میرے وجود کو گرما رہی تھیں، اور پتھر کے مجسمے میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ وہ لمحے بڑے خوشگوار تھے، اور مجھے خوشی تھی کہ میری محبت نے اس کے دل کے وسوسوں کو دور کر دیا۔ اور پیاس کی شدت ایک حد سے گزر جائے تو ایک قطرہ بھی انسان کو زندگی کی امید دلانے کو بہت ہوتا ہے۔ اور ہم دونوں خاموش تھے، لیکن دل کی دھڑکنیں جذبات کی ترجمانی کر رہی تھی، اور وقت نے جو خلیج پیدا کر دی تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ فاصلے سمٹ رہے تھے، اور جھلسا دینے والی دھوپ کے بعد موسم ابر آلود ہو رہا تھا، اور کسی کے کرخت آواز گھنٹ گھنٹ کر ابھری، اپنے ہاتھ بلند کر لو رشید احمد، اور تمہارا برا وقت قریب آ چکا ہے۔ نازو بجلی کی طرح تڑپ کر میرے بازوؤں کے حصار سے نکل گئی، اور میں نے ہاتھ فضا میں بلند کر کے آواز کی سمت دیکھا۔ وہ پستہ قد اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک تھا، اور اس کی آنکھوں سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ خطروں سے کھیلنے کا عادی ہے، اور اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی خود کار رائفل کا رخ ہم دونوں کی طرف تھا، اور انگلی لبی پر موجود تھی۔ شاید وہ میری آمد سے بے خبر نہیں تھا، اور ایک لمحے کو موت کا تصور میری پلکوں تلے بجلی کی طرح کوندا، لیکن پھر میں نے خود پر قابو پانے میں زیادہ وقت نہیں لگایا، اور وہ باری باری کینہ توڑ نظروں سے مجھے اور نازو کو گھور رہا تھا۔ خوبصورت ناگن، اور اس نے نازو کو میلی نظروں سے دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا، تم شاید بھول گئی تھی کہ ہم جس کا نام اپنے فہرست میں شامل کر لیتے ہیں اس کی طرف سے غافل نہیں ہوتے، اور قبر تک اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ نہیں، نازو نے تیزی سے جواب دیا، اور میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ بہت خوب۔ اور وہ الفاظ چباتے ہوئے بولا، اور کیا تم اپنے یار کی باہوں میں باہیں ڈالے ہمیں اپنی وفاداری کا یقین دلا رہی تھیں؟ اور میرے خون کی گردش تیز ہو گئی، اور مجھے نازو کی موجودگی کا خیال جوابی کارروائی سے روک رہا تھا، اور وہ پوری طرح محتاط تھا۔ اس کی انگلی کا ایک ہلکا سا دباؤ بھی ہم دونوں کے جسم کو چھلنی کر سکتا تھا، اور مجھے بس ایک لمحے کی مہلت درکار تھی۔ لیکن ایک لمحے کی خاطر مجھے مجبوراً خون کا گھونٹ پینا پڑ رہا تھا، اور میں پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ شیرہ استاد کی تربیت نے شاید تمہیں غلط فہمی کا شکار کر دیا ہے، اور اس نے جان بوجھ کر میری تذلیل کی خاطر غلط فہمی کے بجائے غلط فہمی کہا تھا، اور ضرورت سے زیادہ اعتماد بھی انسان کو دھوبی کا کتا بنا دیتا ہے۔ اب تم بھی نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے، اور ہم تمہیں ایسی عبرتناک موت ماریں گے کہ فرشتے بھی دنگ رہ جائیں گے۔ تم ایسا نہیں کرو گے مراد شاہ۔ اور اچانک نازو سینہ تان کر میرے ڈھال بن گئی، اور میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ نہ ہوتی تو شاید چودھری نواز کے قتل ہونے سے
पहले ही तुम्हारी हाथों से निकल गई होती। ये तुम्हारा ज़ाती ख्याल है मेरी जान, मुराद शाह ने बड़े बरादारी अंदाज में हरीस निगाहों से घूरते हुए कहा। और हम जिस पंछी को एक बार जाल में फांसते हैं तो फिर मरते दम तक वह फड़फड़ा तो सकता है लेकिन परवाज़ नहीं कर सकता। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था और मैं किसी खुशफहमी का शिकार नहीं था। मुझे कोई मोर्जा ही मौत से बचा सकता था और मुराद शाह जो बकवास कर रहा था उसे पूरा करने की सलाहियत भी उसके खून आलूद आंखों में नजर आ रही थी। लेकिन मैंने बेजिगरी का मुजाहरा करते हुए उसे मुखातब किया। मुराद शाह, जो मर्द होते हैं वो किसी कमज़ोर औरत पर आंखें नहीं निकालते। तुम अगर उस्ताद शेरा के नाम से वाकिफ हो तो ये भी जानते होगे कि उसके शागिर्द पुश्त पर कोई गोली खाना पसंद नहीं करते। हम तुम्हारी ये हसरत भी ज़रूर पूरी कर देंगे, मगर इतनी जल्दी भी क्या है। और मुराद शाह ने मेरा मज़का उड़ाने की खातिर कहा, कुछ देर तो एक आबरू बाख्ता औरत की आड़ में सस्ता लो। और मेरे ज़हन में मुराद शाह का जुमला बारूद बनकर फटा और मैंने एक झटके से नादू का हाथ थाम कर उसे सामने से हटा दिया। मुराद शाह की गिरफ्त राइफल पर मजबूत हुई और मैंने नीचे जोड़कर फिजा में जिस्त लगाई और फिर गोलियों की तरतराहट की आवाज़ के साथ ही अचानक लाइट चली गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बाएं बाजू पर किसी ने चीरा लगाकर तेजाब की पूरी बोतल उलट दी हो और मेरे ज़हन पर गनूदगी का इतना शदीद हमला हुआ कि मुझे किसी बात का होश नहीं रहा। और आखिरी आवाज़ जो मेरे दिल में महफूज हुई वो नाजों की चीख थी। छत पर रोशन तेज पावर का बल्ब मेरी कुव्वत बसारत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। मेरे ज़हन में गुजरे हुए वाक़यात आहिस्ता आहिस्ता जाग रहे थे और नाजों की चीख मेरे लाशऊर में गूंजी। और मैंने दोबारा आंखें खोल दी और वो कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं और मैंने बाएं जानब देखा जहां काठ कुबार बिखरा हुआ था और शायद इस वक्त मैं जहां मौजूद था उसको स्टोर रूम की हैसियत हासिल थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी तख्त पर पड़ा हूं और उसके साथ ही मेरे अंदर खतरे की घंटियां बजने लगीं। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो सूरत हाल बड़ी हद तक वाज़ेह हो गई। उस कमरे या स्टोर रूम से निकासी के बाहर दरवाजे पर एक गन मैन को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं दुश्मनों की कैद में हूँ। और गन मैन ने मुझे हरकत करते देखा तो मशीनी अंदाज में पूरी तरह अलर्ट हो गया और उसकी निगाहों में उभरने वाली दरिंदगी इस बात की तर्जमानी कर रही थी कि वह शेरा के गिरोह का कोई फ़र्द नहीं था। और फिर यकलख्त मैंने उठने की कोशिश की तो करा कर रह गया और मेरे बाएं बाजू फोड़े की मना दर्द कर रहा था और गालबन मुराद शाह की राइफल से निकली हुई कोई गोली मेरे लिए अजियत का सबब बन गई थी और मेरा ज़हन मुंतशिर होने लगा। नादों की चीखने के बाद मुराद शाह की तरफ से की जाने वाली फायरिंग और बिजली का अचानक चले जाना, ये तमाम बातें मुझे उलझा रही थी। नाज़ो ने मुझे बताया था कि राजू ने उसे मेरी आमद की इत्तला दी थी और ऐसी सूरत में यह बात यकीनी थी कि खुद राजू भी हरकत में आया होगा और वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा होगा। शायद उसी ने ऐन वक़्त पर मेन स्विच ऑफ करके सिचुएशन को अपने हक में तब्दील करने की कोशिश की थी और उसका वो अमल मेरी ज़िंदगी की ज़मानत बन गया। मुराद शाह का निशाना बिजली के अचानक चले जाने से चूक गया, वरना मैं और नाज़ो उसकी गोलियों का निशाना बन चुके होते। फिर शायद राजू और मुराद शाह के साथियों के दरमियान ठन गई और इस ख्याल के साथ ही मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैं इस वक्त दुश्मनों की कैद में था और जिसका मतलब यही अखज़ किया जा सकता था कि राजू अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। ऐन मुमकिन था कि वो और नाज़ो भी ज़ख्मी हो गए हों और जंग में सिर्फ जीत के इम्कानात नहीं होते। एक ज़रा सी गलती पूरी बसात का नक्शा पलटा देती है। राजू भी इंसान था और उससे भी भूल चूक हो सकती थी। मेरे ज़हन में परेशान कुन सवालात उभरने लगे और खुदा जाने राजू इस वक्त कहाँ और किस हालत में होगा। शायद उसे मेरी दोस्ती की कोई भारी कीमत अदा करनी पड़ गई हो। मुमकिन है कि उसे किसी दूसरी जगह टार्चर सील में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा हो। और नाज़ो और उस बदनसीब लड़की का क्या बना होगा। और बचपन से जवानी तक वो महरूमियों का शिकार होने के बाद बड़ी मुश्किल से मेरे कुर्ब की तपश से मोम हो रही थी कि किस्मत ने फिर उसकी खुशियों को ताराज कर दिया। और वो क्यों चीखी थी और क्या मुराद शाह के मारे हुए बरस ने उसकी ज़िंदगी के रोशन चिराग को गुल कर दिया और या वो मुझे खतरे में घिरा देकर दुश्मनों की वहशियाना फायरिंग से खौफजदा होकर चिल्लाई थी। अगर वह जिंदा थी और दुश्मनों के हत्थे लग गई थी तो उस पर साबका रहतों के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए होंगे जो ज़मीर और बर्दा फरोश कल तक उसके जिस्म की हिफाजत करते थे और अब के उसके फूल से जैसे नाजुक जिस्म को अपनी ज़िंदगी का निशाना बना रहे होंगे। और क्या तारीख फिर अपने आप को दोहराएगी।
दरवाज़ा खुलने के साथ ही किसी के कदमों की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मैं चौंका, और मुझे इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। मौत और ज़िंदगी का अख्तियार सिर्फ पैदा करने वाले के पास होता है, और इंसान तो महज खुश फहमियों के किले तामीर करके फतह और नुसरत के झंडे गाड़ने के ख्वाब देखता है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और आहिस्ता से गर्दन घुमाकर दरवाजे की समय देखा तो एक बार फिर चौंक उठा। कमरे में दाखिल होने वाला शख्स डॉक्टर शबीर अहमद के सिवा कोई और नहीं था, और मेरे माजी की दर्दनाक दास्तान उसी के नाम से शुरू हुई थी, और वही एक बार फिर मेरी नज़रों के सामने था, और मैंने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। शबीर की निगाहों में अजनबियत का एहसास छलक रहा था, और मेरे करीब पहुँच कर रुक गया और हाथ में दबे एमरजेंसी बैग को मेरे बराबर तख्त पर रखने के बाद उसने मेरे जख्म का मुआयना शुरू किया, और गन मैन उसके 2 कदम के फासले पर पूरी तरह मोहतात था। फिर कबल इसके कि मैं शबीर अहमद से कोई तलख बात कहता, कमरे में एक और शख्स दाखिल हुआ, और उसने रात होने के बावजूद आंखों पर गहरे रंग वाले शीशों का चश्मा लगा रखा था। वो दराज कद और खुरदरे नकोश का मालिक था। फातहाना अंदाज में चलता हुआ मेरे करीब आया और एक लम्हे तक पूरी तवज्जो से मेरे साथ मेरे चेहरे के तासरात का जायजा लेता रहा, और फिर उसकी करख्त और ठोस आवाज़ उभरी, डॉक्टर शबीर, मेरा ख्याल है कि तुम इस हरामजादे से नावाकिफ़ नहीं, और इसके पहले ही जुमले से नफ़रत और हकारत का भरपूर अंदाज़ा लगाया जा सकता था। हो सकता है कि मैंने उसे पहले कभी देखा हो, लेकिन याददाश्त को खरीदो, और नवाज ने तहकमाना अंदाज इख्तियार किया और इसे गौर से देखो, और ये वही कुर्बानी का जानवर है जिसने तुम्हारी जगह जेल में चक्की पीसी है, रशीद अहमद उर्फ शीदा। ओह, और शबीर ने चौंक कर कहा, और फिर सपाट लहजे में बोला, ये तुम्हारे हाथ कैसे लग गया? लंबी कहानी है, और तुम सिर्फ इतना समझ लो कि ये नाज़नीन बेगम के चक्कर में फंसकर हमारे पिंजरे में आ गया है। और उसने मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया, उस्ताद शेरा के बलबोते पर हमसे टकराने के ख्वाब देख रहा था, और मुझे क्या करना है? और शबीर ने दांत चबाते हुए पूछा, और उस्ताद शेरा का नाम सुनकर उसके लहजे में तब्दीली आ गई थी। खौफजदा होने की कोशिश मत करो डॉक्टर, और उसने सख्त लहजे में कहा, और ये अब आखिरी सांस तक हमारी कैद में रहेगा। उसके अलावा तुम ये भी जानते हो कि हमने तुम्हें किसके कहने पर बुलाया है, वरना इस शहर में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं, और हम किसी को ज़बरदस्ती उसके घर से भी उठवा सकते थे। शबीर ने फ़ौरन ही कोई जवाब नहीं दिया, और मैं बड़ी संजीदगी से इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो इस वक्त किस किस्म का रोल अदा कर रहा था, और अभी तक उसके तर्ज अमल से उस बात का कोई तासर नहीं मिला था कि वो मेरी हैसियत से बखूबी वाकिफ़ है। नवाज के आखिरी जुमले से भी यह बात अया हो गई कि उसे किसी की सिफारिश या मशवरे के बाद तलब किया गया था, लेकिन एक बात यकीनी थी कि शबीर इस शख्सियत से भी बहुत करीबी तल्लुकात रखता था, वरना इतनी रात गए वो किसी अजनबी के साथ शराफत से आने पर कभी तैयार ना होता। क्या सोच रहे हो डॉक्टर? और नवाज ने अल्फाज चबाते हुए कहा, मेरा मशवरा है कि तुम जितनी जल्दी मुमकिन हो इसे रास्ते से हटा दो, वरना ये हम दोनों के लिए किसी खतरे की अलामत बन सकता है। और शबीर ने मुझे घूरते हुए सपाट आवाज़ में जवाब दिया, नहीं। नवाज का लहजा फैसला कौन था, और हम इस हराम के तुख्म को इतनी आसान मौत नहीं मारेंगे, और अगर इसे ठिकाने लगाना ही मकसद होता तो तुम्हें बुलाने की क्या ज़रूरत थी? तुम उसके ज़ख्म की मरहम पट्टी करो, और सिर्फ इस हद तक कि बारूद का जहर इसे मौत की नींद ना सुला सके, और उसके बाद क्या करना है ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। शबीर ने पलट कर एक नज़र नवाज को देखा, और फिर वह मेरे ज़ख्म की मरहम पट्टी में मसरूफ़ हो गया। शबीर ने पलट कर एक नज़र नवाज को देखा, और वह मेरे ज़ख्म की मरहम पट्टी में मसरूफ़ हो गया। शायद उसके पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। नवाज कुछ देर खड़ा मुझे देखता रहा, और फिर होंठ चबाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। गनमैन किसी पालतू कुत्ते की तरह दुम हलाता उसे छोड़ने की खातर बाहर तक गया, और मेरे सिलसिले में कोई गलत राय कायम मत करना। और शबीर अहमद ने मौका गनीमत जानकर दबी जुबान में अपनी पोजीशन की वजाहत की, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूँगा। तुम्हें किसके मशवरे पर यहाँ बुलाया गया है? और मैंने उससे आजमाने की खातर पूछा, अजमत बेग। और वह थोड़े तवक्कुफ से बोला। अजमत बेग का नाम सुनकर मेरे ज़हन में एक बरकी लहर सी दौड़ गई, और शेरा ने वो मौक़ों पर उसे मौत की सरहद से ज़िंदगी की तरफ वापस जाने का रास्ता दिया था, लेकिन वो अभी तक अपनी कमीनगी और सिफलीपन से बाज नहीं आ रहा था। बहरहाल शबीर ने अजमत बेग का नाम ज़ाहिर करके मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाई थी। नाज़रीन की कोठी पर जो हादसा पेश आया था, और क्या तुम उसकी तफसील से वाकिफ़ हो? और मैंने दूसरा सवाल किया। सिर्फ इसी हद तक
کہ چودھری نواز کے بعد اس گروہ کا ایک اور اہم آدمی کام آ گیا، مراد علی شاہ۔ راجو اور ناظرین کی کوئی خیر خبر اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اور کیا تم میرا ایک کام کر سکو گے؟ کہو استاد کو فوری طور پر اس جگہ کے پتے اور ٹھکانے سے آگاہ کر دو جہاں مجھے قید کیا گیا ہے۔ نہیں، اور شبیر نے جواب دینے میں کوئی دیر نہیں لگائی۔ میں فی الحال ایسا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اور میں نے اسے سوالیہ نظروں سے گھورا۔ تمہاری طرح مجھے بھی اپنی زندگی عزیز ہے، اور وہ صاف گوئی سے بولا، لیکن مطمئن رہو، اور میں کوشش کروں گا کہ راجو کے اس احسان کا بدلہ چکا سکوں جو اس نے مجھے اپنی قید سے آزاد کر کے کیا تھا، اور میرا بھی کچھ حساب نکلتا ہے تمہاری طرف۔ اور میں نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی، تم آج جس مقام پر کھڑے ہو اور اس میں میری خاموشی کو بھی بڑا دخل ہے۔ 3 سال تک بغیر کسی گناہ کے قید بامشقت بھگتنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ مجھے احساس ہے کہ تمہاری قربانی نے میرے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ اس کے باوجود تم کو اپنی زندگی زیادہ عزیز ہے، اور میں نے اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ پریشان مت ہو، اور اس نے خجل ہو کر جواب دیا، اور میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ یہ شخص کون تھا اور جو بھی اندر آیا تھا، اور میں نے اپنی معلومات کی خاطر دریافت کیا۔ میں صرف اس کے نام سے واقف ہوں، اور عظمت بیگ نے اگر غلط بیانی سے کام نہیں لیا تو یہ شخص اسلم ڈنکا ہی ہوگا۔ اور شبیر نے میری مرہم پٹی کے کام میں مصروف ہوتے ہوئے جواب دیا، اور اس نے کہا تھا کہ چودھری نواز اور مراد شاہ کے بعد اب سارا دار اسی کے کاندھے پر ہے، اور صورت اور لب و لہجے سے بھی خطرناک نظر آتا ہے۔ میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ اسلم ڈنکا اور گن مین دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے۔ شبیر نے اسی کی جانب کوئی توجہ نہیں دی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ اسلم ڈنکا کسی اہم سبب سے ہی واپس آیا تھا، اور کچھ دیر وہ خاموش رہا اور ہم دونوں کو دیکھتا رہا، اور پھر اس نے سپاٹ لہجے میں شبیر کو مخاطب کیا، ڈاکٹر، کیا تم ایک رات کے لیے ہمارا مہمان بننا پسند کرو گے؟ کیا مطلب؟ اور شبیر نے پلٹ کر اسلم ڈنکا کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ بات مطلب کی نہ ہوتی تو میں تمہیں مجبور نہ کرتا۔ اور اس نے خشک آواز میں کہا، اور پولیس کی طرح ہمارا کاروبار بھی مخبروں کی اطلاعات پر چلتا ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو۔ برا مت مانا میری جان، اور ہم مسلطوں کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔